A very warm good morning to all of you, respected director sir, principal ma'am, and worthy teachers. Today I am here. Today I, Rishabh Raj, welcome you all in this in-house training English faculty of Mother Teresa Training Talks English School. Today we all gathered here for a very interesting topic we are going to discuss today. It is embracing multilingual in classroom. So first of all, what is multilingual? Multilingual is a process in which we can teach our students many types of language. They can be resilient, they can provide much knowledge inside them. So how it is important in a student life? It is very much important in a student life. A student should know many type of language. It will help them in their future. It will make their future better. So how it will going to help them? So if I will tell you my story, I will tell you one of interesting my story when I was studying in class 6th. Firstly, I went to Haryana. My school is in Haryana, and I went there. And there, I get very much difficulty to settle down because the language of there is different. My language is different. I am from Bihar, and they are from Haryana, Punjab. They are speaking in different language. I was speaking in different language, and I was from a Hindi medium school, and so I can't speak English language. So we can have conversation with each other and get to know each other very well, and I am facing many problems in that. But when time going forward, I get to learn about that language. I have to learn that language because it is very necessary for me and for my colleagues to know about each other language, so that we can have a little bit conversation with each other. We can meet greet with each other in a very formal way, and there should be no any discrimination between us. So it is very important to know anyone's language. It is very important to know multiple language, so that if we go somewhere outside our local area, if we go somewhere outside our country, we should have that confidence to talk with anyone. We should have that confidence to conversate with anyone, to settle down anywhere, and that is very important in a part of life, that we should know English. English is a very important thing because it will help us in any other side of the world, any other place in the world. We should know other language. There are many languages, as we know that our country is a multi-language country. In our country, a huge number of languages have been spoken. We spoke Maithili. If we take in our state Bihar, we spoke many type of language like Maithili, Bhojpuri, Hindi, English, Sanskrit also, Maghi also, and it is not any what happens in nowadays. Students feel shy when they have to speak their regional language, when they have to speak other language. It is not that you have to feel shy. You have to build a confidence inside themselves. They have to build that much confidence that it is a part of their life, it is a part of their future, and they have to do it. They have to learn that thing because it is going to help them in their future. So on this topic today, our very talented teacher Tapan Kumar, TGT, SST, sir is going to tell us all. Sir is going to give us all a bright knowledge about this topic. He will going to throw some light. He will going to tell us about how we should teach our student, how we should practice to tell our student, how we should make ourselves so that our student can learn many things about this topic, many things about this multilingual in classroom. So I will not take your much time now. With huge respect, I want to call Mr. Tapan sir, who is today resource person, is going to address us all, and is going to throw some light on this given topic. So please welcome Tapan sir with big round of applause. So, thank you, Rishabh sir, calling me some express ideas about multilingualism in classroom. Before that, Rishabh sir tells about many things in multilingualism. First of all, I will thank you all respected principal ma'am, director sir, and all teachers we presented here. So today I am going to express something about multilingualism in
classroom. So as we know that in India we can speak many languages. In India there is many geographical location and they can speak many languages. भारत में जो लोग हैं, भारत में ज्योग्राफिकल जो लोकेशन के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है और लगभग सभी राज्यों का अपना एक मदर टंग है, अपना एक लैंग्वेज है जो कि उसमें अपने आइडियाज, व्यू को, राइटिंग को, स्पीच को लिखते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं। सो इस तरह हमारा ये जो देश है एक मल्टीलिंग्विज्म है, पूरा का पूरा ये जो भारत जो इंडिया देश है मल्टीलिंग्विज्म है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, डायलेक्ट है, लगभग 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉर्डेड है। अबाउट 3000 मोर डायलेक्ट्स, 3000 से ज़्यादा बोलियाँ हैं। सो इस तरह से हम सब देखते हैं कि हमारे भारत में जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो कई तरह के हैं, अलग अलग प्रकार की है और मूलतः हम सब इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं या हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वही हम साउथ में चले जाएं या ईस्टर्न में चले जाएं या नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में चले जाएं, वहाँ पर लोग ज़्यादातर क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का चलन है। और साउथ में भी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि तमिल, मैथिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे अधिक संख्या में लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं। सो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये जो देश है, आवर कंट्री इज ए मल्टीलिंग्विज्म कंट्री। हमारा देश एक बहुभाषिक देश है जो कि एक गर्व की बात है, प्राउड की बात है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस समथिंग अबाउट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मल्टीलिंग्विज्म, व्हाट इज मल्टीलिंग्विज्म, आखिर मल्टीलिंग्विज्म क्या है, इसका डेफिनेशन, इसका राइट डेफिनेशन क्या हो सकता है। So first of all, multilingualism is the ability of an individual, a speaker or a community of a speaker to communicate effectively in three or more languages. Multilingualism एक ability है, multilingualism is a ability to speak and to communicate in three or more languages in effective way. This is called by this is multilingualism। मतलब बहुभाषिता वो है जो कि एक क्षमता है, बहुभाषिता एक हमारे अंदर एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, एक इंटेलिजेंस है जिसमें कि कोई इंडिविजुअल स्पीकर, कोई एक व्यक्तिगत व्यक्ता या एक कम्युनिटी या कोई समाज जो है बहुत सारी भाषाओं को जानता या एक दूसरे में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता, तो उस तरह से उसको हम मल्टीलिंग्विज्म बोलेंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 3 से अधिक भाषा या 2 से अधिक भाषा जानता हो तो उसको मल्टीलिंगुअल बोलेंगे। और उन सारे प्रोसेस के जो कम्युनिटी में जो लोग जो बहुत सारी भाषाएं जो बोल रही है, उसको बहुत सारी भाषाएं जो बोल रहे हैं उनको मल्टीलिंगुअलिज्म बोलेंगे। यानी कि अधिक भाषाओं का, एक से अधिक भाषा का ज्ञान, एक से अधिक भाषा का नॉलेज। First of all, multilingualism is the knowledge of more than one language by a person or within a social group. It assumes the ability to switch from one language to another language in a speech, in writing or in reading. So, multilingualism क्या है? एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, एक से 2 से अधिक भाषाओं को बोलने का, 2 से अधिक भाषाओं को बोलने का एक ज्ञान है। इट एज्यूम्स द एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम, यानी कि इस तरह से एबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक भाषा से, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आसानी से स्विच कर जाए, है ना। इन द स्पीच, राइटिंग एंड रीडिंग, मतलब कि अगर किसी इंसान के पास एक एबिलिटी है एक से अधिक, 2 से अधिक भाषाओं को बोलने का, लिखने का
पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं कि वो जो इंसान है या जो पार्टिकुलर कम्युनिटी है एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी का एक निर्माण कर रहे हैं। पढ़ने या लिखने में, बोलने में 2 से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करना, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। जैसे कि अब मान लिया जाए कि बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी और इंग्लिश में बोलते हैं, पढ़ते और लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा रीजनल लैंग्वेज आती हो या तमिल आती हो, अगर हम तमिल को भाषा को लिख रहे हैं और उसका इंटरप्रेशन हम हिंदी में कर रहे हैं, यानी कि लिखा हुआ है तमिल में और उसका इंटरप्रेशन और उसका जो अर्थ है वो हम सब वो हिंदी में कर रहे हैं, या कोई भाषा इंग्लिश में लिखा हुआ हो और उसका इंटरप्रेशन हम इंग्लिश से तमिल में कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम मल्टीलिंग्विज्म बोलेंगे, यानी कि बहुभाषिता, यानी कि बहुत ही आसानी से एक भाषा से दूसरे भाषा में स्विच कर जाना। और ये दर्शाता है किसी इंसान की एबिलिटी, क्रिएटिविटी और ब्रेन स्टॉर्मिंग को ये दर्शाता है कि कैसे कोई व्यक्ति या समाज एक भाषा से दूसरे भाषा में आसानी से स्विच कर जाए, यानी कि आसानी से उसको लिख ले, पढ़ ले और बोल ले। तो इस एबिलिटी को हम सब मल्टीलिंग्विज्म बोलते हैं। सो नेक्स्ट, a person who can speak multilingual language is known as a polyglot or multilingual। अब हम बात करते हैं, एक टर्म है पोलीग्लोट और मल्टीलिंगुअल। पोलीग्लोट उसको बोलेंगे जो एक से दो से अधिक भाषाओं को जानता हो और समझता हो, उसको हम पोलीग्लोट बोलेंगे। जो 2 से अधिक भाषाओं को जानता हो और समझता हो उसको पोलीग्लोट या मल्टीलिंगुअल बोलेंगे, यानी कि 2 से अधिक भाषाओं को जानने वाला। और मल्टीलिंगुअल किसको बोलेंगे? जो किसी पीयर ग्रुप या सोशल ग्रुप या समाज के द्वारा सभी एक पार्टिकुलर प्लेस में यूज किया जाता है और एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, तो उस स्थिति में हम मल्टीलिंगुअल बोलेंगे, यानी कि बहुभाषिकता और 2 से अधिक भाषा को बोलने वाला, समझने वाला, लिखने वाला को बोलेंगे बहुभाषिक। सो व्हाट एनसीएफ से अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म। अब हमारे एनसीएफ है जो जिससे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये हमारा सीबीएसई का एक करिकुलम है, यानी कि जो एनसीएफ के हिसाब से जितने भी जो सीबीएसई के स्कूल है या आईसीएसई के स्कूल है या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी स्कूल है, एनसीएफ सबको रेगुलेट करता है कि क्लास में या स्कूल में किस तरह से करिकुलम का पालन किया जाए, पूरे पाठ्यक्रम का एकेडमिक से लेकर और अधिक और दूसरे अलग क्रियाओं तक कैसे इसका पालन किया जाए। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितने भी स्कूल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चलते हैं एनसीएफ के रूल्स पर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का कहना है इंग्लिश इन इंडिया इज ए ग्लोबल लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। इंग्लिश जो है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक ग्लोबल लैंग्वेज है। किस कॉन्टेक्स्ट में? मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब अधिक भाषाओं के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक वैश्विक भाषा है। इसमें कुछ जैसे कि इंडिया में, भारत में टोटल 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है जो कि सर्टिफाइड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। 1652 मदर टंग, 1652 मदर टंग है और 3000 से अधिक डायलेक्ट है, यानी कि 3000 से अधिक बोलियां हैं। डायलेक्ट मीन्स यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थानों को ज़्यादा अगर अंतर नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में बोली का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसे कि इन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मगही, चंपा, भोजपुरी आदि ये बहुत सारी बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं। सो एनसीएफ कहता है कि इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है। किसके कॉन्टेक्स्ट में?
मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में। अब इसमें 3 टर्म को कॉइन किया गया है, मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल। मोनोलिंगुअल मीन्स कोई व्यक्ति जो एक भाषा में अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, लिख ले, उसको हम बोलेंगे मोनोलिंगुअल। ए पर्सन हु कैन स्पीक वन लैंग्वेजेस, स्पीक, राइट और रीडिंग इन वन लैंग्वेज called as monolingual. Bilingual facilitate a person ability to speak, read and write 2 languages called as bilingual. Bilingual उसको बोलेंगे जो कोई व्यक्ति 2 भाषाओं का ज्ञाता हो, यानी कि 2 भाषाओं में निपुणता रखता हो, उसको बोलेंगे बायलिंगुअल। ये बायलिंगुअल क्या करता है, ये भी हमारे क्रिएटिविटी को, ब्रेन स्टॉर्मिंग या इंटेलिजेंट को फैसिलिटेट करता है। दरअसल जो बायलिंगुअल जो एक मेथड है जो कि सीजे डॉटसन द्वारा दिया गया था। बायलिंगुअल एक मेथड है, सीजे डॉटसन द्वारा दिया गया था। इसमें हम टारगेट लैंग्वेज, जो हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है उसको हम सब लर्न करते हैं। कैसे टारगेट लैंग्वेज लर्न करने का इसमें जो तरीका जो बताया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला जो मदर टंग है, इसमें मदर टंग नेटिव लैंग्वेज का यूज कर टारगेट लैंग्वेज को सीखा जाता है और एक समय बाद धीरे धीरे वो जो हमारा नेटिव लैंग्वेज है वो धीरे धीरे खत्म होता है, उसका हम प्रयोग करना कम शुरू कर देते हैं और जो टारगेट लैंग्वेज है वो सीख जाते हैं। तो इसको बायलिंगुअल मेथड सीजे डॉटसन द्वारा दिया गया था। ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट द टारगेट लैंग्वेज एंड यूज द मदर टंग टू एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज। ये हमारे टारगेट लैंग्वेज को फैसिलिटेट करता है और यूज द मदर टंग के इस्तेमाल से, मातृभाषा के इस्तेमाल से जो टारगेट लैंग्वेज है या जो सेकेंड लैंग्वेज है, ये हमें सीखने में मदद करता है। और तीसरा टर्म दिया गया है मल्टीलिंगुअल। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मल्टीलिंगुअल एक से अधिक भाषाओं को, 2 से अधिक भाषाओं को बोलने वाला, लिखने वाला और पढ़ने वाला ना, इन द एबिलिटी टू स्पीक, राइट एंड रीडिंग मोर देन 2 लैंग्वेजेस। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाउ टू चिल्ड्रेन अचीव मल्टीलिंगुअल। अब सवाल होता है कि बच्चे जो है वो मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषिता को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए कुछ मेथड दिए गए हैं। इसमें 2 मेथड दिए गए हैं, एक इलाइट है और एक नेबरहुड। इलाइट मतलब कि बच्चा जो है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है एम्ब्रेसिंग मल्टीलिंगुअल इन क्लासरूम, यानी कि बच्चा जो है वो क्लासरूम में कैसे मल्टीलिंगुअल को अपना सके, या मल्टीलिंगुअल कोई अगर बच्चा हो तो उसको कोई इनसिक्योर फील न हो। यानी कि मल्टीलिंगुअल टारगेट, मल्टीलिंगुअल से क्लास का टारगेट यही है, टारगेट यही है कि बच्चा कैसे मल्टीलिंगुअल को अचीव कर सके, कैसे सीख सके, लर्न कर सके, एक्वायर कर सके। पहला है एलीट लैंग्वेज लर्न इन ए फॉर्मल सिस्टम। एलीट एक वो सिस्टम है जिसमें कि बच्चा फॉर्मल सिस्टम के थ्रू लैंग्वेज सीखता है, थ्रू प्लान एंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन एज इन ए स्कूल सिस्टम। इसके थ्रू प्लान एंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन, एक प्लान के तहत और एक रेगुलर इंस्ट्रक्शन के तहत फॉर्मल वे में, यानी कि स्कूल सिस्टम में जो बच्चा सीखता है लैंग्वेज, उसको कहते हैं एलीट मेथड। ये हो गया एलीट मेथड, यानी कि जो बच्चा फॉर्मल वे में यानी कि स्कूल में इन सभी लैंग्वेजेस को एक प्लान से, एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू सीखता है, वो हो गया एलीट मेथड। दूसरा जो मेथड है, जो भाषा बच्चा विद्यालय में सीख रहा है, इट मीन्स टारगेट लैंग्वेज, यानी कि इसमें जो बच्चा जो है, जो हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है मल्टीलिंगुअल में, जो हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश या कहीं पर जो अदर भी भाषाएं जो है या विदेशी भाषाएं हैं, फ्रेंच है, जापानीज है, रूसी है, तो जो टारगेट लैंग्वेज के सीखने के लिए ये एलीट मेथड का यूज किया जाता है। दूसरा है नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स बच्चा जो है,
setting acquired through the interaction with people speaking different languages. It acquired through environment, theoretically informal system. इन दोनों तरीके से बच्चा बहुभाषी होते हैं। नेबरहुड मीन्स यहाँ जो लैंग्वेज जो है एक इनफॉर्मल सिस्टम के थ्रू सीखा जाता है, यानी कि बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट में, यानी कि अपने आसपास के क्षेत्र में आसपास के लोगों द्वारा बोली गई या लिखी गई, पढ़ी गई भाषाओं को धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट से सीखते हैं। थ्रू द इंटरेक्शन विद पीपुल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, जो आसपास के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं वो उन भाषाओं से, है ना, बच्चा जो है वो सीखता है। इन्वायरमेंट इट एक्वायर्ड थ्रू इन्वायरमेंट, और इसके लिए एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। थ्योरेटिकली इनफॉर्मल सिस्टम, ये एक तरह का इनफॉर्मल सिस्टम है। और कहा भी जाता है कि जो बच्चे जो है, जो चाइल्ड जो है वो डेवलपमेंट और हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंट का एक सम्मिश्रण है, यानी कि किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो हेरिडेटरी से ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चा का जो लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होगा या डेवलपमेंट स्टेज में जितने भी डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, जितने भी तरह के डेवलपमेंट है ये ज़्यादा बच्चा जो एक्वायर जो करेगा, जो सीखेगा वो इन्वायरमेंट के थ्रू सीखेगा। हाँ, हेरिडेटरी का जो योगदान है बच्चे के डेवलपमेंट में, हेरिडेटरी का योगदान बहुत ही कम होता है। अगर हेरिडेटरी मीन्स अगर कोई बच्चा अपने नेटिव लैंग्वेज वाले क्षेत्र में पैदा होता है, यानी कि वो बच्चा अगर जहाँ पर इंग्लिश का ज़्यादा बोलचाल हो उस वाले क्षेत्र में आपको पैदा ले रहा है बच्चा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जन्म के साथ ही वो इंग्लिश जो एक्वायर है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बोलना शुरू कर देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चा अगर वो एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो भाषा का जरूर एक्वायर करेगा, लेकिन बच्चा अगर वो एनवायरनमेंट से दूर हो जाएगा, अगर हम उसको किसी दूसरे कहीं एनवायरनमेंट में अगर उसको रख दें तो वो अपने नेटिव लैंग्वेज को उतना सही तरीके से सीख नहीं पाए जितना कि वहाँ वो उस नेटिव लैंग्वेज वाले क्षेत्र में रहकर वो सीख सकता है। तो नेबरहुड तो इन्वायरमेंटल का लैंग्वेज सीखने में इन्वायरमेंटल का बहुत ही बड़ा इफेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रभाव है। सो बच्चा जो है, जो चाइल्ड जो है, इन दोनों तरीके से बहुभाषी होते हैं। पहला था एलीट, दूसरा नेबरहुड। इन दोनों तरीकों से बच्चा जो है वो अलग अलग भाषाओं को क्या करता है, सीखता है। इसके बाद हम सब होम लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज के बारे में कुछ जानेंगे कि एनसीएफ जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, एनसीएफ जो है, ये इसका क्या अचीवमेंट है, एनसीएफ में क्या मदर लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज के बारे में कहा है। तो एनसीएफ का कहना है, पहली बात है, द ओरिजिनल लैंग्वेज ए पर्सन ग्रोज अप स्पीकिंग इज नोन एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग। जो ओरिजिनल लैंग्वेज होता है, ए पर्सन ग्रोज अप स्पीकिंग इज नोन एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग। मतलब बच्चा जिस परिवेश में पैदा होता है और स्टार्टिंग से जिस लैंग्वेज को बोलता है वो लैंग्वेज उसका मदर टंग कहलाता है, और इस लैंग्वेज को सीखने में कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, इसको लर्न नहीं किया जाता है, इसको एक्वायर नहीं किया जाता है। ये बच्चा जो है बहुत ही आसानी से इनहेरिटेड कर लेता है। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मस्ट बी कवर्ड थ्रू एट होम लैंग्वेज। प्राइमरी एनसीएफ कहता है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो उसके होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग में दी जाए। कितने क्लास बच्चे तक, जैसे कि 1 to 5 और 6 to 8। तो और नया जो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2000 में आया, तो इसमें एनसीए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कहना था कि 1 to 5 और 6 to 8 के बीच में 1 to 5 तक बच्चा को पूरी तरह से शिक्षा दी जाए उसके नेटिव लैंग्वेज में या मदर टंग में, और 6 to 8 में धीरे धीरे बच्चे को सेकेंड टारगेट लैंग्वेज से जो हम उसको सिखाना चाह रहे हैं
उसको धीरे धीरे वहाँ पर वो शिफ्ट किया जाए, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड या मल्टीलिंगुअल मेथड का धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू कर दे। और 9th और 10th में मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज यानी कि मल्टीलिंगुअल वाले कॉन्सेप्ट को सही से वो लागू कर दे। और दूसरा चीज़ कहा गया था इन्वायरमेंट, दूसरा चीज़ एनईपी के द्वारा में कहा गया था कि इन्वायरमेंट सबसे बड़ा इसमें जो प्लेज रोल होता है लैंग्वेज सीखने में बच्चे का, वो इन्वायरमेंट का होता है, वातावरण का होता है। तो जिस तरह का वातावरण हमारे आसपास के क्षेत्रों में रहेगा तो वही वातावरण में बच्चे सीखेंगे। अब जैसे कि कोई बच्चा अगर रीजनल क्षेत्र में अगर जन्म ले रहा ग्रामीण इलाकों में, तो वो संभवतः है वहाँ पर आसपास जो जिस तरह की भाषा बोलेंगे या जिस तरह की बोली होगी उस बोली को बच्चे को एक्वायर कर देंगे, उसको सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लर्न करना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्कूल आने पर उनको भाषा धीरे धीरे लर्न करना पड़ता है। इसलिए स्कूल में उस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाता है, यानी कि प्रेम रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल का वातावरण इस तरह से बनाया जाता है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं तो अपने वातावरण यानी कि अपने इन्वायरमेंट से सीख सके, एक दूसरे को इमिटेट कर सके। अगर बच्चा किसी दूसरे को इंग्लिश में बात करते या कोई भी टारगेट लैंग्वेज सीखना चाहता है उसमें बात करते हुए अगर पाया जाता है तो बच्चे जो है धीरे धीरे उस चीज़ को एडप्ट कर लेते हैं, उस चीज़ को सीख लेते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। और उनको अगर सिखाना है तो एक टारगेट वे में एलीट मेथड से उनको हम सिखा सके हैं। जैसे कि इसमें दो बातें एनसीएफ द्वारा दिया गया था, एलीट और नेबरहुड, एलीट एंड नेबरहुड। दूसरा है केयर मस्ट बी टेकन टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट द चाइल्ड होम लैंग्वेज एंड मदर टंग। बच्चे को केयर जरूर करें। और बच्चे जब स्कूल आता है तो अपने साथ बहुत सारी लैंग्वेज को, भाषा को बोलता है। तो बच्चे स्कूल में जिस भी भाषा का इस्तेमाल करें क्लास में उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उनके डांट को बैठा देना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बच्चे का जो अर्ली चाइल्डहुड जो एज है, अगर उसमें हम बच्चे को डांट देते हैं या बच्चे को हतोत्साहित करते हैं तो इससे बच्चा डर जाता है और आगे चीज़ों को सीखने में थोड़ा परहेज करता है। तो इसलिए स्कूल बच्चे सब जिस भाषा को लेकर स्कूल में आते हैं उन भाषा का हमको सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। और वो होम लैंग्वेज या मदर टंग में जो बात कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट। सो दीज ऑल थिंग्स अभी हमने जितने बात पर डिस्कस किए, चर्चा किए, तो इस तरीक़ों से हम मल्टीलिंगुअल को प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट जो रहता है मल्टीलिंगुअल को अचीव करना वो आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो अब हमारे सामने आ रहे हैं रमेश सर, जो कि इस टॉपिक पे मल्टीलिंगुअल पर अपने कुछ विचारों को व्यक्त करेंगे। तो थैंक यू उनके लिए। First of all, thank you Tapan sir to give me an opportunity to say something about today's topic, embracing multilingualism in classroom। कक्षा में बहुभाषा पाठ कहा जा रहा है कि यह एक ऐसी सच्चाई है जहां स्टूडेंट्स की मदर टंग और स्कूल का लैंग्वेज दोनों एक जैसा नहीं होता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है इसको हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस भाषा के माध्यम से क्लास में एक साथ सभी बच्चों को एक से ज़्यादा भाषा सीखनी जाती है। आज वर्ल्ड में अधिकतर ऐसे देश हैं जहाँ स्टूडेंट्स यदि बहुभाषी होते हैं तो उनको अपवाद नहीं आदर्श माना जाता है। एक से अधिक भाषा जानने से हमें बहुत से लाभ होते हैं। इसलिए प्रत्येक टीचर को यह दायित्व होना चाहिए कि वह अपने स्टूडेंट्स की कौशल को पहचाने और उसको अच्छा करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। कह रहा है कि इस बहुभाषिक कक्षा को प्रारंभ करने से पहले
इसकी जो गतिविधियां हैं उनके बहुत सारे सिद्धांत हैं। सबसे पहले है कि स्टूडेंट्स उस लैंग्वेज को सबसे अच्छा ढंग से सीखता है जिस लैंग्वेज के बारे में वह जानता है, और टीचर्स भी उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं जिस भाषा पर उनकी पकड़ सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले भाषा में जितना ज़्यादा स्टडी होता है रिजल्ट उतना ही बेहतर होता है। इसलिए हम लोगों को या प्रत्येक टीचर को यह ड्यूटी होनी चाहिए कि वह क्लास में एक से ज़्यादा लैंग्वेज बच्चों को सिखाए। अगर बच्चा एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखता है तो उसके रोजगार के अवसर, कहीं भी बसने के अवसर बढ़ जाता है। इसलिए आज का जो दौर है उसमें इनकी प्राथमिकता ज़्यादा है। नाउ मैं दोबारा तपन सर को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और आज के टॉपिक को कंटिन्यू करें। Thanking Raman sir to speaks about बहुभाषिता या मल्टीमीडिया क्लासरूम। सो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ एट प्राइमरी स्टेज चाइल्ड लैंग्वेज मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर विथ नो अटेम्प्ट टू करेक्ट देम। मतलब प्राइमरी स्टेज में, प्राथमिक स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में बच्चे जब क्लास में, स्कूल्स में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं तो उनको भाषा को पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर वो गलती करते हैं तो उनकी गलती को सुधारे नहीं। इसमें यही कहा गया है कि उनको गलती को इमीडिएट नहीं सुधारे। एट प्राइमरी स्टेज चाइल्ड लैंग्वेज मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर विद नो अटेम्प्ट टू करेक्ट देम। उन्हें सही करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से उनमें कॉन्फिडेंस का लूज हो सकता है। A child acquires his or her home language naturally through a street and neighborhood and societal environment। एक बच्चा जो है जो लैंग्वेज को रिक्वायर करता है अपने नेबरहुड से, अपने आसपास के क्षेत्र से और एनवायरनमेंट से, वातावरण से, जो लैंग्वेज होता है उसको एक्वायर करता है। जो समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस एनवायरनमेंट में या जिस कल्चरल बैकग्राउंड में बच्चा जो रह रहा है वहाँ पर उस लैंग्वेज को उसको लर्न करने का जरूरत नहीं होता है। वो लैंग्वेज बच्चा जो है वो बहुत ही आसानी से सीख जाता है। चिल्ड्रेन आर बोर्न विथ इट नीडेड लैंग्वेज फैसिलिटी एंड दे इंटेलिजेंट एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लैंग्वेज बिफोर दे केम टू स्कूल। यानी कि बच्चा जो है वो जन्म के साथ ही भाषा के साथ वो पैदा होता है और अपने स्कूल आने से पहले वो लैंग्वेज के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, यानी कि जटिल तंत्र को आसानी से समझ जाता है, जिसको कि एलईडी कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका सबसे पहले चर्चा जो एक साइकोलॉजिस्ट थे नॉम चॉम्स्की ने किया था। उनका कहना था कि बच्चे के ब्रेन में जो हमारा लेफ्ट साइड का जो ब्रेन हेमिस्फीयर है, राइट साइड का, राइट और लेफ्ट, हमारा ब्रेन जो है तो दो पार्ट में बटा हुआ है, राइट और लेफ्ट। तो राइट में ब्रेन में हमारे जितने भी क्रिएटिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग्स, इंटेलिजेंस जो है वो राइट ब्रेन से रेगुलेट होता है, और हमारे क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज एबिलिटी जो है वो लेफ्ट ब्रेन में होता है। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार हमारे माइंड में लेफ्ट हेमिस्फीयर में एक लैट नाम का डिवाइस है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। इस डिवाइस के थ्रू बच्चा जो है वो शुरू से ही, मतलब जन्म लेने के साथ ही वो अपने लैंग्वेज पर पकड़ बना लेता है। यानी कि वो लैंग्वेज का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो बच्चा जन्म से ही सीख कर आता है। हालांकि एलईडी के बारे में, एलईडी कोई प्रत्यक्ष मिला नहीं है, लेकिन ये हमारे न्यूरॉन्स में मौजूद रहता है जो कि हमारे लैंग्वेज को बढ़ाता है। अब इसमें लैंग्वेज स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे का कुछ स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तब क्राइम होता है, यानी कि बच्चा जन्म लेने के साथ ही बहुत बोलता है। सेकेंड स्टेज में बच्चा जब 6 वीक्स का होता है तो वो क्यूइंग करता है, क्यूइंग मतलब कूकना। और थर्ड स्टेज है
बच्चा जब 6 मंथ का होता है तब बैबलिंग करता है, बैबलिंग यानी कि बलबलाना। और 4th स्टेज है बच्चा जब 1 साल से लेकर यानी 12 महीना से लेकर 18 महीने के बीच बच्चे के मुख से, बच्चे के माउथ से एक वर्ड निकलता है, जिसे 1 वर्ड स्टेज कहते हैं, 12 से 18 महीने के बीच। फिर इसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है 2 साल में बच्चा का जो वर्ड है वो 2 वर्ड स्टेज हो जाता है, 2 वर्ड स्टेज कहते हैं, या इसको न्यू वर्ड कहते हैं, या टेलीग्राफिक स्पीच। अब बच्चा जो है वो फ्रिक्वेंट जो है भाषा को, अक्षर को पिरोकर आसानी से एक स्पीच, एक टेलीग्राफिक, एक पूरा सेंटेंस बोल सकता है, 2 साल तक बोलते होते हैं। तो बेसिकली नोम चॉम्स्की का यही कहना था कि जन्म के साथ ही बच्चा जो है वो भाषा सीखना शुरू कर देता है। और इसके बाद लास्ट 6ठा स्टेज में प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा का जो है एक इम्पोर्टेंट स्टेज होता है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का। इस अर्ली चाइल्डहुड में या 2 साल के बाद यानी प्री स्कूल ईयर में, यानी कि 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में बच्चे का जो भाषा का विकास का जो रफ्तार है वो बहुत ही तेजी से होता है। और उस एज स्पैन में अगर बच्चा जिस एनवायरनमेंट में ज़्यादा अगर घुल मिल जाए तो वो उस एनवायरनमेंट से बच्चा जो है भाषा को आसानी से सीख सकता हो। अगर कोई बच्चा हिंदी भाषा क्षेत्र में पैदा हुआ हो और 2 से 6 साल के बीच में, अगर संभवतः 2 से 6 साल के बीच में अगर जहाँ पर इंग्लिश भाषा बोली जाती हो या और कोई भी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि तमिल हो गया, बंगाली हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया बोली जाती है, तो बच्चा को उस परिवेश में जाता है तो उस भाषा को बहुत ही आसानी से सीख जाता है, वो एक्वायर कर लेता है, उसको लर्निंग का जरूरत नहीं होता है। इसके बाद हम सब मल्टीलिंगुइज्म के बारे में, एक रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि मल्टीलिंगुइज्म जो है एक रिसोर्स है, तो इससे पहले हम सब मल्टीलिंगुइज्म का डेफिनेशन जाने कि मल्टीलिंगुइज्म क्या है, मल्टीलिंगुइज्म के क्या क्या एस्पेक्ट हैं, इसको सीखने का स्टेज क्या है, जैसे कि इलाइट, नेबरहुड, 2 स्टेज है सीखने का। और ये बच्चे को इसके बाद हम सब जाने कि जो टारगेट लैंग्वेज है या जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, इन सभी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इन सभी के इस्तेमाल के बारे में एनसीएफ जो है वो साफ लिखा हुआ है कि एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ के हिसाब से इस तरह से बच्चे जो है मल्टीलिंगुइज्म को प्राप्त कर सकता है या एक मल्टीलिंगुइज्म माहौल में एक जी सकता है और उस माहौल को क्रिएट कर सकता है, बच्चे क्लास में सीख सकता है। तो इसमें एनसीएफ द्वारा कहा गया था कि सबसे पहले बच्चे जो अर्ली चाइल्डहुड में एज में है उनकी भाषा को कक्षा में एक्सेप्ट किया जाए, उनके किसी गलती करने पर उनको डांटा ना जाए, उनको एग्जैक्ट तुरंत उनकी गलती को ठीक नहीं किया जाए, बाद में सुधार सकते हैं लेकिन तुरंत गलती को उनके ठीक नहीं किया जाए। ये कुछ वेज से कुछ तरीके थे जिससे बच्चा जो है वो मल्टीलिंगुइज्म एक्सपेक्ट या मल्टीलिंगुइज्म क्लासरूम को पूरा कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीलिंगुइज्म रिसोर्स, जो बहुभाषिता है, एक संसाधन है। कैसे है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इस पहला है ए क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर मस्ट यूज मल्टीलिंगुइज्म, ए टिपिकल फीचर ऑफ द इंडियन लिंग्विस्टिक लैंडस्केप एज ए क्लासरूम स्ट्रेटजी एंड ए गोल। इसमें कहा गया है कि शिक्षक को, टीचर को बहुभाषिता होना चाहिए, मतलब टीचर को भी जो स्कूल में जो क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको भी 1 से 2 से अधिक भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो क्लासरूम में अपने स्ट्रेटजी और अपने गोल को पूरा करने के लिए टीचर को भी 2 से अधिक भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को अपने मेथड बताने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। अब जैसे कि क्लासरूम में बच्चे को अगर हम कोई टॉपिक समझा रहे हैं वो अगर इंग्लिश भाषा में हो तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा सभी लोग जो है वो इंग्लिश को आसानी से इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो उसके लिए शिक्षक को जो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, तो अगर वहाँ का रीजनल लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, तमिल हो या कोई और बांग्ला हो, तो उसके हिसाब से टीचर जो है उस रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से या उस नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से टीचर जो
शिक्षक को भी 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। दूसरा है, दिस इज ऑल्सो ए वे टू इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड एंड दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड एन अकाउंट ऑफ हिज हर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। यानी कि भाषाई विभिन्नता के आधार पर किसी भी बच्चे से भेदभाव, किसी भी बच्चे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए और क्लास में सभी बच्चा फील हो और सिक्योर महसूस करे, असुरक्षित महसूस नहीं करे। भाषीय विभिन्नता के आधार पर किसी को असुरक्षित महसूस नहीं कराए। इट मीन्स आप बहुभाषिता को बढ़ावा देंगे और कोई भी बच्चा भाषीय पृष्ठभूमि से पीछे नहीं हो पाएगा। अब कुछ वीडियोज के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा स्टेज है, तो इसमें कहा गया है सेकेंड स्टेज में कि बच्चा जो है वो भाषाई विविधता के आधार पर Countries of immigration are becoming more and more multicultural and multilingual. Though all languages have the same function, there is a common idea that some languages, such as countries' official languages and international languages like English, are better and more useful. This has an impact on the emotions that children with migrant parents might feel towards the official language and the languages spoken at home, often leading them to be ashamed of their home language because they feel that it's not as important as the majority language. If children refuse to learn and speak their home language, parents may feel discouraged and decide not to speak to their children in their native language. Sometimes parents think that using their native language at home might make it more difficult for the children to learn the official language spoken at school. The attitude that school and teachers have towards home languages is crucial. Sometimes teachers are worried that immigrant children might not learn the official language quickly enough. They might also be worried that other children feel left out if immigrant children talk to each other in their home language. For these reasons, some teachers may ask students to speak only the majority language at school. Although it is important to promote learning of the official language, it should be strongly emphasized that all languages are important. If a school doesn't actively promote all languages, students can believe that the language spoken at school is more important than their home language. Teachers can promote multilingualism by using approaches such as translanguaging and language awareness. Translanguaging is a teaching approach that encourages students to use different languages in class. It works at its best when both the teacher and the students know the same languages. In this case, pupils can be asked to discuss a topic in one language and then write about it in another language. Even teachers who can only speak one language can use translanguaging. In this case, they become co-learners and encourage students to use their home language in class, even if they don't speak the language themselves. This way, pupils are allowed to express their ideas not only by using the majority language, but also by using other language tools they have available. तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि किस तरह से हम मल्टीलिंगुअल से अवगत हो जाएं और आसानी से एक लोग से दूसरे लोग के बीच में जुड़ जाएं। तो मल्टीलिंगुअल का अंततः यही उद्देश्य है, यही एम है कि पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में जितने भी कंट्री है या जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी लोग में आपस में सामंजस्य बन सके और सभी में विचारों का आदान प्रदान, उनके थॉट्स का आदान प्रदान और नॉलेज का आदान प्रदान बहुत ही आसानी से हो सके। इसलिए भी इस मल्टीलिंगुअल के एम को अचीव करना बहुत ही जरूरी है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जैसा कि हमने बताया कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बच्चे को किसी भी भाषाई विविधता के आधार पर डिफरेंशिएट नहीं किया जाए और
उनके अपने भाषा के प्रति उनको सुरक्षित महसूस हो, ना कि उनको मजाक उड़ाया जाए। तीसरा है लैंग्वेज सबस्यूम्स मल्टीलिंग्विज्म बाइलिंग्विज्म। भाषा जो है वो खुद ही मल्टीलिंग्विज्म और बाइलिंग्विज्म को सबस्यूम कर लेता है। यानी कि अगर हम एक भी भाषा जान रहे हैं तो इससे हमें दूसरे या तीसरे भाषा को जानने में, समझने में, पढ़ने में बहुत ही आसानी होता है। यानी कि हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज या तीसरे लैंग्वेज तक आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं होता है। अगर हम कोई एक भी भाषा अच्छे से जान रहे हैं तो दूसरा या तीसरा भाषा बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं बिना एफर्ट के। बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल पीपल आर capable of greater cognitive flexibility and creativity and perform better academically than monolingual। बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल जो है ये हमारे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमारे संज्ञानात्मक सोच को, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता एंड परफॉर्म बेटर एकेडमिकली, और इससे हम बेटर एकेडमिकली होते हैं। यानी कि जो बाइलिंगुअल है या मल्टीलिंगुअल है ये हमारे कॉग्निटिव, ये हमारे रचनात्मकता, हमारे बुद्धि को, ये हमारी रचनात्मकता हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख ले, जैसे कि हम सभी जानते हैं राजा राममोहन राय के बारे में लोग सभी ने सुना होगा। वो आर्य समाज के संस्थापक भी थे, फाउंडर भी थे। उनको कम से कम 4 से 5 लैंग्वेज पर पकड़ थी। 4 से 5 नहीं, लगभग 10 to 11। सोचिए उनका जो क्रिएटिविटी है वो कितना होगा। वो हिंदी, इंग्लिश, अरेबिक, उर्दू, बांग्ला इत्यादि सभी भाषाओं को बहुत ही आसानी से वो लिख लेते थे, पढ़ लेते थे और जान भी लेते थे। मल्टीलिंगुअल बाइलिंगुअल कॉम डेफिनेट कॉग्निटिव एडवांटेज, हमारा संज्ञान अर्थात माइंड को ये हमारा तेज बनाता है एवं बच्चों का विकास होता है जो क्रिएटिव होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है और अन्य बच्चों के मुकाबले बहुत ही तेजी से सीखता है। यानी कि जो बच्चा मल्टीलिंगुअल या बाइलिंगुअल जानता हो उससे उसके दिमाग, उसके क्रिएटिव, उसके रचनात्मकता में बहुत ही ज़्यादा विकास होता है। बच्चा जो क्रिएटिव होता है उसका इंटेलिजेंस इंक्रीज होता है। छठा है देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बाइलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, मेटाकॉग्निशन एंड एक्सक्लूसिव अचीवमेंट। यानी कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है किसके बीच में, किसके बीच में, तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी संज्ञान के बीच में, मेटाकॉग्निशन यानी कि हम अपने ज्ञान पर विचार करना, हम अपने संज्ञान को अच्छे से विचार करते हैं, इसको मेटाकॉग्निशन एंड एक्सक्लूसिव अचीवमेंट। इसके लाभ बहुत है, जैसे कि बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं और स्वयं के संज्ञान पर और स्वयं के नॉलेज पर विचार करते हैं। यानी कि ये जो मल्टीलिंगुअल है इससे बच्चा बहुत ही क्रिएटिव होता है, बहुत ही क्रिएटिव होता है। वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, जिससे बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। अगला है द लर्नर्स कैन क्विकली एसोसिएट विद अ स्कूल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एम्बियंस ऑफ गिवन टेक्स्ट। बच्चा जो है बहुत जल्द ही इन चीज़ों को सीख पाएगा, समझ पाएगा एवं जान पाएगा। लर्नर्स जो है, जो सीखने वाले जो है वो बहुत ही जल्दी एसोसिएट करते हैं सोशल से, कल्चर से और लिंग्विस्टिक एम्बियंस से, ताकि बच्चा बहुत ही इन सोशल कल्चर के माध्यम से बहुत ही जल्द इन भाषाओं को या मल्टीलिंगुअल को आसानी से सीख सके। अगला है द टीचर मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू द मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड द मल्टीलिंगुअल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रेशन। सो शिक्षक को भी एक मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड से होना चाहिए, शिक्षक को भी एक मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड से होना चाहिए ताकि वो बच्चे की एबिलिटी को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, अपने मल्टीलिंगुअल एबिलिटी को कॉम्प्रिहेंशन और इंटरप्रेशन के बारे में आसानी से, कॉम्प्रिहेंशन
एक मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड से होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो आसानी से समझ सके, जो भी सब्जेक्ट जो भी विषय पढ़ रहे हैं वो उसको आसानी से बच्चे समझ सके। स्ट्रेटजी फॉर ए मल्टीलिंगुअल इन क्लासरूम। तो ये हम बात कर रहे थे मल्टीलिंगुअल के बारे में कि मल्टीलिंगुअल क्या है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। मल्टीलिंगुअल इज ए रिसोर्स टू नो समथिंग अबाउट मेनी थिंग्स लाइक डाइवर्जन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, their personality, their the way of talking, everything is improving। यानी कि एक मल्टीलिंगुअल बच्चा बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक होता है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है और चीज़ों को, कल्चरल को, सोशल को, बहुत ही इन चीज़ों के रिलेशन को बहुत ही आसानी से समझता है। और इसके साथ ही साथ शिक्षक को भी, टीचर को भी मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, ताकि बच्चे को आसानी से इन सभी चीज़ों के बारे में सिखा सके। स्ट्रेटजी फॉर ए मल्टीलिंगुअल इन क्लासरूम। क्लासरूम में कौन स्ट्रेटजी का यूज किया जाए ताकि बच्चे जो है वो मल्टीलिंगुअल को सीख सके। यानी कि मल्टीलिंगुअल में जो भाषा जो है, या जो वो जो फर्स्ट लैंग्वेज जो जान रहे हैं, या बच्चा को 2 भाषा जान रहा है तो 2 से अधिक भाषा को कैसे वो जाने, कैसे वो समझे, कैसे वो लिखे, कैसे वो पढ़े, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ अप्रोच है। पहला स्ट्रेटजी क्या है क्लासरूम के बारे में? पहला स्ट्रेटजी है ट्रांसलिंगुअलिज्म। मीन्स क्लास में टीचर ट्रांसलेट करके मल्टीलिंगुअल को बढ़ावा देगा, ताकि बच्चे आसानी से टारगेट लैंग्वेज सीख सके। शिक्षक जो है वो क्लास में ट्रांसलेशन मेथड के हिसाब से, ये भी एक लैंग्वेज सीखने का मेथड है। जिस तरह से डायरेक्ट मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है। सो इंग्लिश सीखने का, बेसिकली इंग्लिश सीखने का बहुत सारे मेथड है। तो इसी में है ट्रांसलिंगुअल, जो हम ट्रांसलेशन की मदद से बच्चे। और इसमें 2 पॉइंट है, यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज इन ए कन्वर्सेशन। पहला है ट्रांसलिंगुअल, यानी कि क्लास में ट्रांसलेट करके बच्चे को सिखाना। दूसरा है कोड स्विचिंग, यानी कन्वर्सेशन के दौरान 2 लैंग्वेज का यूज करना। तीसरा है कम्युनिकेट पोटेंशियल, कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देना, प्रिंटेड एनवायरनमेंट को इंक्रीज करना। चौथा है टीचर शुड बी फेमिलियर विथ द होल लैंग्वेज अप्रोच, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड रिटन। दूसरा है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टीचर जो है वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि एक मॉडल एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज सिखाएगा। इसके बाद तो इन सभी अप्रोचेज से इनका भी ये कुछ स्ट्रेटजी है, इसके हिसाब से बच्चे मल्टीलिंगुअल को क्लास में आत्मसात करते हैं। सो अब हम बुलाने जा रहे हैं सब सर को, जो इस पॉइंट पर अपने कुछ एक्सप्रेस व्यू करेंगे और इसका कंक्लूजन निकालेंगे। Thank you so much, sir, for providing us